it's याशिता and welcome back to my channel and welcome back to a new vlog। तो आज मैं बहुत दिनों के बाद I'm trying to make a productive day in my life। Hopefully आज का दिन productive हो। वैसे काम आज बहुत सारे हैं। जब मैं घर पे बैठ के अपना to do list बना रही थी I was like oh god there's so much work और उस पर एक add on करने के लिए आज मैं पूरे दिन vlog भी करने वाली हूँ। But I'm pretty sure you guys will enjoy it। If you're interested please keep on watching। पर उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। Also hit the notification bell and follow me on my Instagram। India now let's get started with today's video। Guys सबसे पहले ना मैं अपना योगा करूँगी which I've been doing for the past week। मैंने वापस से स्टार्ट किया है थोड़ा सा वर्कआउट करना, थोड़ा सा योगा करना, क्योंकि मैं आपको जल्दी से हेल्थ अपडेट भी दे देती हूँ। क्योंकि फाइनली जाके मेरी स्टीरॉइड्स बंद हुई हैं। जिन्हें भी पता होगा मेरे हेल्थ इश्यूज़ के बारे में ऑन गोइंग है, बहुत लंबा अभी नहीं मैं आपको पकाऊंगी, बट इन शॉर्ट अभी स्टीरॉइड्स बंद हो गए हैं। तो आपको पता है उससे ना वेट गेन बहुत होता है क्योंकि आपको भूख लगती है और उसी की वजह से जितना थोड़ा मेरा एकदम से वेट गेन हुआ है ना, थोड़ा बहुत उसकी वजह से हुआ है। पहले से जब मैं बहुत अंडर वेट हो गई थी ना, उससे अब जाके काफ़ी एनर्जेटिक फील होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील होता है विच इज़ अ गुड थिंग। पर अभी मैं योगा कर रही हूँ इसलिए क्योंकि उससे ना सुबह सुबह पूरी बॉडी खुल जाती है, आपको एक्टिव लगता है एंड लॉन्ग लाइफ के लिए भी आपके लिए योगा बहुत अच्छा है। सो आई एम गोइंग टू गो एंड मैं 10 से 12 बार सूर्य नमस्कार करूँगी। दैट्स इट फॉर टुडे। थोड़ा सा वार्म अप के बाद आई थिंक उसी से ना अभी स्टार्टिंग में उससे बहुत फ़र्क पड़ता है, पूरी बॉडी वार्म अप हो जाती है अच्छे से, पूरा ओवरऑल बॉडी का वर्कआउट हो जाता है। सो आई एम गोइंग टू डू दैट। मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ। गाइज योगा इज़ डन, बॉडी हो गई है वार्म अप। अभी अपने ऊपर ना ऑल ऑफ अ सडन मैं बहुत सारा नहीं करना चाह रही हूँ, सो आई डू इट लाइक 20 से 30 मिनट्स, उतना अभी के लिए इनफ है। पर बालों की हालत देख रहे हो ना आप, तो अभी सबसे पहले जा रही हूँ, आई हैव टू वॉश माई हेयर एंड देन आई एम गोना सी यू गाइस इन अ बिट तैयार होने के बाद। ऑलराइट गाइज, सो आई एम बैक फ्रॉम द शावर एंड नाउ आई फील ऑल फ्रेश एंड क्लीन। सो यू गाइज नो दैट आई हैव टू frequently straighten my hair, and because of all the heat and the traveling that I have been doing for a while, my hair has become really frizzy and very rough. So I wanted to share with you guys my new hair care regime. So I've been using Biolash Smooth Proof Deep Smoothing 6-in-1 Serum, which has helped me achieve frizz-free hair and honestly is my one-stop solution for all my hair concerns. Let me just tell you guys that this serum is used professionally by hairdressers in salons. In fact, my hairdresser used this serum on my hair and he only recommended me to use this, and I've been using this ever since. This contains avocado, grapeseed oil, which nourishes, gives shine and strengthens your hair to protect it from split ends. The application of the serum is also very easy. All you have to do is that you have to pour it, then rub it and apply it on the lengths of your hair. This has a very non-sticky and non-greasy texture which I absolutely love, and you can instantly see the difference how it adds shine to your hair and controls the frizz. This serum has 6-in-1 benefits. It not only helps in controlling the frizz and smoothens the rough ends, but at the same time it also protects your hair from humidity and adds instant shine to your hair. Same time this also helps in nourishing dry hair and instantly detangles. You can also use the serum in multiple ways. You can use it before or after blow drying your hair, or for party styling when you want that sleek look. I personally like to carry it in my bag all the time because the packaging is also super travel friendly. I can use this anywhere to fix my hair. In fact guys, I've been using the entire Biolash Smooth Proof range. So I use shampoo to cleanse my hair, then I use the conditioner which nourishes my hair, and then I finish off with my serum. And guys, the best part is that this entire range is super affordable. You guys can get the Biolash Smooth Proof shampoo only for rupees 225, in which you get 200 ml, conditioner for rupees 190 in which you can get 98 grams, and the serum for rupees 310 in which you get 100 ml. And guys, all of these products are paraben free, and I would highly recommend you guys to use these products for healthy looking, frizz free and nourished hair. I'm going to be leaving all the links and the details in the description box down below so you guys can check it out. मैं रेडी हो गई हूँ, मैंने अपनी फाइनल आउटफिट भी पहन ली है। मैं एल्लू के साथ खेलने लगी थी और भूल गई थी व्लॉग भी कर रही हूँ। अभी याद आया कि आपको दिखा दूँ, मैंने मेकअप भी थोड़े और थोड़ा सा कर लिया, वैसे मैं ऐसे ही करती हूँ न्यूड सा, एंड मेरे हेयर भी हो गए डन, और मेरा एल्लू परेशान हो रहा है क्या।
इतनी प्यारी प्यारी करती है ना मेरे साथ, और हमेशा आ जाती है मेरे साथ स्टूडियो में कंपनी देने के लिए मुझे, तो मुझे बिल्कुल अकेला नहीं लगता। गोदी में सो गई है, सो जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ। एलू का बर्थडे भी आने वाला है गाइज इस महीने। एलू का बर्थडे आने वाला है क्या? किसका बर्थडे आने वाला है मेरे बच्चे को? एली का बर्थडे हम सेलिब्रेट करने वाले हैं 25th को, एंड आई एम सो एक्साइटेड। मैंने इतनी सारी चीज़ें देख ली हैं, इसके लिए ड्रेस ऑर्डर कर लिया, इसके लिए गिफ्ट्स, इसका केक कैसे ऑर्डर करना है, सब कुछ। मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और उसका ऑफकोर्स व्लॉग तो बनाऊंगी मैं। एनीवे अभी बातें करने बैठ गई तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। अभी मुझे जाना है, आई हैव टू शूट अ रील। जाना कहीं नहीं है, यहीं पे शूट करना है। आई हैव टू शूट अ रील फॉर इंस्टाग्राम, तो वो कर लेती हूँ। आपको थोड़े बहुत बिहाइंड द सीन्स दिखाती हूँ। मैंने जो भी आउटफिट्स मुझे पहनी है ना, वो भी अभी मुझे निकाल के रखनी है। सो आई एम गोना डू दैट, फिर आपसे मिलती हूँ। कर लिया। आज मैंने सोचा था 2-3 आउटफिट्स में कर लूँगी, पर लेट हो गया, लंच टाइम हो गया और मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है। सो आई एम वेयरिंग दिस ड्रेस। इसको मैं शॉर्ट्स में भी डालूंगी, तो आप डिटेल्स देख लेना। एंड ये बैग किस किस को याद है? ये मैंने मम्मी को गिफ्ट किया है और अभी उनसे चुरा के लाई हूँ अपने रील के लिए। बट एनीवेज अभी चलते नीचे, देखते हैं लंच में क्या बना है। एली यहाँ पे सो रही है, अभी मैंने आपको दिखाया ना, तो इस बच्चे को भी लेके जाती हूँ। इसका भी लंच टाइम हो गया है, मेरा भी लंच टाइम हो गया है, तो घर चलते हैं, सबसे मिलते हैं, लंच करते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। हेलो, लंच में क्या बन रहा है आज? लौकी खाती नहीं हो तो लौकी के कोफ्ते। ओहो हो। और ये क्या है? ये बैगन भाजा है, बंगाली डिश है। अरे वाह, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। प्लीज फटाफट इंतजार कर रहे थे। लंच करने के बाद मैं 2-3 घंटे रेस्ट करी थी, व्लॉग नहीं किया मैंने। थोड़े बहुत मेल्स वगैरह रिप्लाई किए और छोटी सी नैप भी मार ली है। अभी मम्मी के साथ मैं निकली हूँ नर्सरी के लिए। सो एक्चुअली बहुत दिनों से प्लांट्स लेना ड्यू थे मेरे, स्टूडियो के टेरेस के लिए भी और घर के लिए भी। तो आज हम लोग जा रहे हैं। ये मम्मी का फेवरेट काम होता था पहले, मम्मा को बहुत मज़ा आता था प्लांट्स लेना, पर अब धीरे धीरे मेरा भी हो रहा है। मुझे बहुत इंटरेस्ट आता है, मन करता है अलग अलग प्लांट्स लो, लाओ, उनकी देखभाल करो। सो इसलिए मैं भी रेडी हो गई। और मैंने टॉप भी ना, पहले मैं घर आके घर वाली टी शर्ट पहन ली थी, पर फिर आई चेंज। मैंने सोचा देखो अभी लाइटिंग कितनी अच्छी आ रही है ना, गोल्डन आवर वाला टाइम है, तो अगर कोई लोकेशन मिला तो आई विल क्लिक अ पिक्चर ऑल्सो फॉर इंस्टाग्राम। और ये रही ममजू। ममजू इज लुकिंग वेरी प्रिटी टुडे। ये चिकनकारी कुर्ता पहना मम्मा ने आज, येलो। दिखाऊंगी जब उतरेंगे। अभी पहुंच जाते हैं एक बार, हमें एग्जैक्टली याद भी नहीं है कि रास्ता क्या था उस वाली नर्सरी का, बट ठीक है, वी गोना सी यू इन अ व्हाइल। वहाँ पे क्योंकि मम्मी मेरे से बहुत गुस्से में वहीं बैठी है, पर बहुत गुस्से में मुझसे। आपने हमेशा इनका अच्छा वाला रूप देखा है, प्यारा प्यारा। मम्मा उससे मजाक मत करो यार, इतनी बात नहीं हुई है जितना आप गुस्सा हो। गुस्सा नहीं, ठीक है ना, तो तुम ऐसे वीडियो में तो मत दिखाओ। क्यों नहीं दिखाओ? नहीं देखो देखो, सब लोग देखो। तुम खिलवाड़ कर रही हो। इतनी गुस्से होने की बात है नहीं। नहीं बाद में देख के हंसोगे। नहीं, हम देखेंगे ही नहीं। मत करो यार बाबू, मत। फिर मेरे को सच में मेरा बहुत दिमाग खराब कर रहा है। इतनी बात नहीं है मम्मा, हम कभी भी जा सकते हैं पास में। क्यों नहीं करूँ मैं? आज ब्लॉग करूँ, मैं सबको दिखाऊंगी कि मेरी माँ गुस्सा है। मत करो ना मेरे को। पहली बार आपने मम्मी को गुस्से में देखा होगा। मैं डालूंगी भी, बता रही हूँ आपको, ये सब डालूंगी, आप देखना। इतनी बात नहीं हुई है। क्या वो ये बताना चाहोगे कि मैं बताऊँ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से?
बता दो, कोई बात नहीं, डांट खिलवा दो सबसे, जाओ बताओ। गाइस हम लोग नर्सरी गए थे ना, तो हमें जहाँ मम्मी को जान था वो वाली नहीं मिली, हम दूसरे में गए। वहाँ भी प्लांट्स से अच्छे थे, मैं लेके भी आ गई हूँ कुछ स्टूडियो के लिए, दिखा दूँगी आपको बाद में। पर अब मम्मी का गुस्सा इसलिए क्योंकि उन्हें एक और जगह जाना था और उन्हें और प्लान्स लेने थे, जो कि बात ठीक है, मैं समझ रही हूँ। पर आप भी समझो, मुझे घर आके अपना भेजना था, काम था मेरा, मुझे मेल करना था, 6 बज गए थे। मैंने सिर्फ इतना कहा कि देख 10-15 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। फिर अच्छा ठीक है देख लो, मतलब। और देखो मेरी फोटोशूट की, मैंने फोटोशूट भी नहीं की ना, टाइम का नहीं था मम्मा, टाइम नहीं था, लेट हो गए थे हम, ढूंढने में लेट हो गए थे। कितने दिन से, मतलब आप समझ लो महीनों से प्लान बना रही हूँ। तो मैंने गलत टाइम ले लिया उसकी वजह से थोड़ा सा। तो कल चल लेंगे, परसों चल लेंगे, तो पक्का चल लेंगे। इतनी बड़ी गलती थी, अगर मेरी इतनी बड़ी गलती है गाइस तो बता दो, मैं बस मम्मी को जल्दी ले आई। कुछ कह भी नहीं रही हूँ ना, बस चुप ही तो बैठी हूँ। इनका गुस्सा यही होता है, कुछ नहीं कहती है, बोलती हूँ ठीक है कर लो तुम्हारी मर्जी। तब से मुंह बना के बैठी है मुझसे, मुझे नहीं अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा आप लोगों की बहाने से हंस देंगी, तो हंस दी, अब ठीक भी हो जाएंगी, हो जाओगे ना। मैं पक्का आपके साथ चल लूँगी, कल परसों कभी भी बोलोगे मैं चल लूँगी, पर आज काम था मेरा, ठीक है, ओके। या मम्मी होपफुली मान ही गई है। एंड अभी मैं बैठ के अपने थोड़े बहुत पेंडिंग मेल्स वगैरह रिप्लाई कर रही थी, थोड़ा बहुत काम मेरा हो गया सॉर्टेड, मोस्टली सारा ही हो गया है। तो अभी जो मेरा टाइम है ना दिन का बचा हुआ, इट इज़ फॉर मी माई सेल्फ, मेरा मी टाइम है। अब मुझे कुछ टाइम से फॉलो कर रहे हो, आपको पता होगा मैं न्यू चीज़ें ट्राई आउट करती रहती हूँ, अगर आप मेरे इंस्टाग्राम स्टोरीज देखते हो तो। जैसे कुछ दिनों पहले मैंने एम्ब्रॉयडरी सीखी थी, एम्ब्रॉयडरी ट्राई आउट किया था, मैं कुछ पिक्चर्स डालूंगी अपनी एम्ब्रॉयडरीज के, बहुत अच्छा लगता है मुझे वो करना, बहुत थेरेप्यूटिक लगता है, एंड मैंने कभी किया नहीं था। तो ऐसी मुझे ना नई चीज़ें सीखना और करना बहुत अच्छा लगता है, मेरे माइंड को बहुत पीस मिलता है उससे। एंड आई थिंक ज़रूरी नहीं आप किसी काम में बहुत अच्छे हो, अगर आपको करने में मज़ा आ रहा है डेफिनेटली उसको एक बार ट्राई आउट करके देखना ही चाहिए। एंड आई थिंक ऐसा कुछ भी आर्ट से रिलेटेड ना मुझे बहुत थेरेप्यूटिक लगता है। आई थिंक मेरे मेंटल हेल्थ के लिए वो मुझे बहुत हेल्प आउट करता है, क्योंकि जितनी देर भी आप वो करो बहुत शांति मिलती है। आई डोंट नो कोई मुझसे रिलेट कर पा रहा है तो बताना कमेंट्स में। सो येस, आज मैं आपको दिखाती हूँ समथिंग दैट आई एम ट्राइंग आउट अगेन, न्यू चीज़ जो मैं कर रही हूँ। मैं वाटर कलर पेंटिंग तो करती थी, बट रिसेंटली मैंने थोड़े मिनी कैनवस ऑर्डर किए हैं और एक्रेलिक पेंट्स ऑर्डर किए हैं, एंड आई एम ट्राइंग इट आउट। थोड़ा टफ होता है वो, पर मज़ा आता है, और बेकार भी बनता है तो कुछ नहीं होता। करने में मज़ा आना चाहिए। मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने अपनी बालकनी ऐसे खोल के, अभी एसी भी नहीं ऑन कर रही हूँ मैं, देख रहे हो आप, अभी मेरे सारे पेड़ हिल रहे हैं, हवा चल रही है बहुत अच्छी, तो मैं यहाँ बैठ के आराम से पेंटिंग करूँगी। ये दोनों पेंटिंग मैंने अभी रिसेंटली ट्राई आउट की थी, मज़ा आया करने में बहुत, एंड मुझे ये वाली ज़्यादा अच्छी लग रही है, ये तो मेरे से बिगड़ गई थी। जब मैं दिन में सोचती हूँ कि सारे काम खत्म हो फिर ऐसा कुछ करो। एम्ब्रॉयडरी किट भी मैंने बहुत मंगा के रखी है, तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है करनी। अगर आपको और जानना होगा ना, किसी दिन आपको एम्ब्रॉयडरी वाला देखना होगा तो मुझे बताना, और अगर आप चाहते हो मैं अपना क्रिस्टल कलेक्शन भी आपके साथ शेयर करूं तो वो भी बताना, क्योंकि उसमें भी मुझे काफ़ी इंटरेस्ट है, उससे भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। अभी फिलहाल ये पेंटिंग कर लेते हैं, देखते हैं कैसा होगा। कैमरे के आगे ऐसा ना हो कि बिगड़ ही जाए पर बिगड़ भी गया तो मैं आपको दिखा दूंगी। पेंटिंग बन गई है। आई डोंट नो, कैमरे के आगे शायद मैं नर्वस हो गई और थोड़ी सी बिगड़ गई है, अगर आप ध्यान से देखोगे डिटेलिंग इतनी प्रॉपर नहीं हो पाई है, बट आई हैड फन। और आज की भी पेंटिंग मैंने कर ली है, बहुत ही मज़ा आया है मुझे। अगर आप चाहो तो शॉर्ट्स पे ना मैं रोज़ एक एक बना के डाल सकती हूँ, अगर आप चाहो तो मुझे बता देना। यस गाइज, आई थिंक आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि अब मैं घर जाऊँगी, रिलैक्स होंगी, चेंज करूँगी और डिनर करूँगी। एंड आई थिंक आज का डे काफ़ी प्रोडक्टिव था, काफ़ी अच्छा था। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करना, और अगर आपको ऐसे ही आगे व्लॉग्स देखने हैं ना तो मुझे बता देना। या जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज़। गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो, सेफ रहो एंड सारे प्रिकॉशंस लो, एंड आई एम गोना सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। बाय।